Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start new chapter, statistical inference, chapter number 16. It is already in your knowledge that there are two kinds of statistics: descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics includes those techniques and methods of statistics which help in explaining the conclusion in describing style, while inferential statistics deals with all those techniques and methods of statistics which help in explaining the conclusions in inferring style. Statistical inference is the process of using sample data for the purpose of reaching conclusions about the population. The two main subdivisions of statistical inference are estimation and testing of hypotheses. In this chapter, we will discuss only estimation. First is estimation. Estimation, the process of estimating a true unknown value of a parameter on the basis of sample data is called estimation, or we say that a process in which we obtain the values of unknown population parameter with the help of sample data. ठीक है, क्या कहलाएगा? Estimation. What is estimator? Estimator क्या होता है? Estimator is the rule or formula or function used to estimate a parameters is called an estimator or point estimator. Now the term is estimate. A numerical value obtained by substituting the sample observation in the rule or formula is called an estimate. For example, let we have values 5, 10, 12, 18 and 15, then x bar is equal to summation x divided by n, and it is equal to 5 plus 10 plus 12 plus 18 plus 15 divided by 5, ये हो जाएगा 60 divided by 5 हमारे पास आ जाएगा 12. Here x bar is equal to summation x over n is the estimator. क्या है ये फार्मूला? फार्मूला क्या है? वो क्या कहलाएगा? Estimator, which is being used to estimate population, mean mu. ठीक है, and the value 12 is called the estimate. ठीक है, वो जो वैल्यू हमारे पास आई है सिंगल वैल्यू, वो क्या कहलाएगी? एस्टिमेट और पॉइंट एस्टिमेट भी उसको हम कहते हैं. ठीक है, तो ये होगा एस्टिमेट. आपको अच्छी तरह उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. Estimation is further divided or classified into point estimation and interval estimation. Point estimation. What is point estimation? Point estimation is a process of obtaining a single value from the sample as an estimate of the unknown population parameter is called point estimation. या simply हम इसको कह देते हैं, when an estimate for the unknown population parameter is expressed by a single value, it is called point estimation. Now, point estimate. A single value calculated from the sample data is called a point estimate. Interval estimation. A process of obtaining a range of values within which the true value of the unknown population parameter is expected to lie with a certain degree of confidence is called an interval estimation, or simply we say
when an estimate for the unknown population parameter is expressed by a range of values within which the population parameter is expected to occur is called an interval estimation. It is very difficult to obtain the exact value as a point estimate of the population parameter, so generally interval estimation is adopted in practice. For example, it is very difficult to say that the average age of first year students is 16 years. Rather, we may say that average age of first year students lies between 15 and 17 years. Now, properties of a good point estimator. In point estimation, we consider that estimator as the best or good estimator which is very close to the value of the population parameter. So, good estimator must possess the following four properties. First one is unbiasedness. और आपने जो पढ़नी है वो सिर्फ अनबाइसनेस पढ़ेंगे, बाकी तीन के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन तो दे दूंगी, लेकिन वो आपके वो जो है अप्लाई करना या उनकी उसकी एप्लीकेशन जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, वो बीएससी लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम अनबाइसनेस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज अनबाइसनेस। An estimator is said to be unbiased if its expected value, that is mean, equals the corresponding population parameter, otherwise it is said to be biased. Let theta hat be an estimator of parameter theta, then theta hat will be unbiased estimator if expected value of theta hat is equal to theta. Also, b is equal to expected value of theta hat minus theta which is equal to 22. b किसको शो कर रहा है? 22 को शो कर रहा है। If b is equal to expected value of theta minus theta is equal to 0, then theta hat is unbiased estimator. ठीक है, यानी उसका डिफरेंस 0 होगा तो दोनों इक्वल होंगे, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट इज इक्वल टू थीटा होगा। ठीक है, जब डिफरेंस 0 होगा तो क्या होगा? 22 0 होगा, तो क्या होंगे उस वक्त? अनबाइस्ड होंगे। थीटा हैट जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर होगा थीटा का। If b is equal to expected value of theta hat minus theta is greater than 0, then theta hat is positively biased. अगर इनका डिफरेंस जो है वो greater than 0 होगा तो तब जो है थीटा हैट जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिवली बाइस्ड होगा। If b is equal to, b is the bias, is equal to expected value of theta hat minus theta is less than 0, then theta hat is negatively biased. We may observe the following unbiased estimators. Number 1, क्या है इसमें? Sample mean x bar is an unbiased estimator of mu, population mean mu, and it is written as expected value of x bar is equal to mu. Second one is sample proportion p hat is an unbiased estimator of population proportion p, and it is written as, ये आप सैम्पलिंग में सारे पढ़ चुके हैं, expected value of p hat is equal to p. Third one is sample variance s square is an unbiased estimator, ये small s square है, ठीक है, is an unbiased estimator of sigma square. Expected value of s square is equal to sigma square, where s square is equal to summation x minus x bar whole square divided by n minus 1. ये आप पीछे पढ़ चुके हैं इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंसेस में, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होता है, और उस वक्त होता है जब एस स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा? समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। जब उसको एन माइनस 1 पे हम डिवाइड करेंगे तब ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर होगा। सैम्पल वेरिएंस एस स्क्वायर, अब ये कैपिटल एस स्क्वायर है, इज अ बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, वेयर एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन।
और ये आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जब इसको n पे हम डिवाइड करते हैं तो तब क्या होता है, ये बाइस्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन वेरिएंस का। Now the second property is efficiency. It is quite possible to estimators of a parameter. An estimator is said to be efficient if it has smaller variance than the variance of the other estimator. If theta 1 hat and theta 2 hat are two unbiased estimators of the sample parameter theta, that is, expected value of theta 1 hat is equal to theta and expected value of theta 2 hat is equal to theta, then theta 1 hat will be considered more efficient than theta 2 hat if variance of theta 1 hat is less than variance of theta 2 hat. कि जब दो आपके पास जो हैं वो पैरामीटर्स हैं तो उनमें से जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस जो है वो एफिशिएंट कहलाएगा, वो एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस जो है वो लेस होगा, स्मॉलर होगा देन द अदर एस्टिमेटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल सैंपल मीन x बार एंड सैंपल मीडियन x tilde are both unbiased, but sample mean x bar has smaller variance than the variance of the sample median. ठीक है, variance of x bar is less than, symbolically it is written as variance of x bar is less than variance of x tilde, where x bar is more efficient than x tilde. ठीक है, कि x बार जो है उसका वेरिएंस जो है वो स्मॉलर है देन वेरिएंस ऑफ मीडियन x tilde, तो x बार जो होगा, मीन जो होगा, इट इज़ मोर एफिशिएंट देन मीडियन। The third property is consistency. When the sample size increases, the difference between estimators and parameters becomes smaller and smaller. An estimator is said to be consistent if its value becomes closer and closer to the population parameter as the sample size increases. That is, theta hat is a consistent estimator of theta if limits and tends to infinity, expected value of theta hat is equal to 0 and limit and tends to infinity, variance of theta hat is also equal to 0. के क्या मतलब है इसका, कि अगर कंसिस्टेंट किस वक़्त होगा, कोई जो है एस्टिमेटर जो है वो कंसिस्टेंट कैसे होगा, कि जब सैम्पल साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो एस्टिमेटर और पैरामीटर के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो कम से कम हो जाएगा। और जब एस्टिमेटर जो है वो उस वक़्त कंसिस्टेंट कहलाएगा जब वो पॉपुलेशन पैरामीटर के क्लोज हो जाएगा और उसका डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और इसी तरह से उसका वेरिएंस भी ज़ीरो होगा। जब n इंक्रीज करेंगे तो तब वो एस्टिमेटर क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहलाएगा। ठीक है, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज सफिशिएंसी. If an estimator uses all the information contained in the sample regarding the parameter, the estimator is said to be sufficient. ठीक है, जब एस्टिमेटर जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हैं वो सैंपल से मुतल्लिक वो मौजूद हैं तो वो सारी की सारी जो है वो यूज़ करेगा, तो उस वक़्त एस्टिमेटर जो है वो कहलाएगा सफिशिएंट एस्टिमेटर। Example 16.1 from your book on page 194, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंसेस। अब पिछले चैप्टर में भी, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये सारा बताया है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और आज इसको हम फर्दर जो है इसको आप समझ लें। अब क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ 5 नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10. Consider all possible samples of size 2 which can be drawn with replacement from this population by forming the sampling distribution of S square and small s square. Show that expected value of S square is not equal to sigma square and यानी बाइस्ड एस्टिमेटर है, और दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, कि फिर वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है।
यानी दोनों आपने बताने हैं। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और प्रैक्टिकल में भी ये आता है। सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि हम पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन मीन फाइंड कर लिया, तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया और उसका सम लिया और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड किया तो पॉपुलेशन मीन आ गया जो कि इक्वल टू 6 है। फिर उसका वेरिएंस फाइंड किया, ठीक है, जो कि इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, समेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, और कैपिटल एन 5 है। 2 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 होल स्क्वायर, 6 आपके पास म्यू आ गया ना। ठीक है, और 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ये 40 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, इक्वल टू 8 आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा 8 के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने नंबर ऑफ सैम्पल्स फाइंड करने हैं। हमारे पास विद रिप्लेसमेंट केस है। ठीक है, और नंबर ऑफ सैम्पल्स फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होगा, n रेज टू पावर n, कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n। ठीक है, कैपिटल N कितना है हमारे पास 5 है और स्मॉल n है 2, साइज 2 के सैंपल बनाने हैं तो 5 5 25, यानी 25 सैंपल जो हैं वो बनेंगे। तो साइज 2 के हम 25 सैंपल विद रिप्लेसमेंट वो बना लेते हैं। फिर उसके बाद उनका मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन ये जब समझाया है तो उसमें बेशक कॉलम बना लें सैंपल, फिर आगे मीन और फिर उसके आगे वेरिएंस का। ठीक है, तो मीन फाइंड कर लेंगे सबके, फिर उसके बाद हम वेरिएंस फाइंड करेंगे सबके। ठीक है, जितने भी सैंपल्स हैं इनके वेरिएंस फाइंड करेंगे, डिवाइडेड, और फार्मूला कौन सा उसमें लगाएंगे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, बाइस्ड एस्टिमेटर के लिए। ठीक है, उसके लिए हम डिवाइडेड बाय एन करेंगे और जो अनबाइस्ड एस्टिमेटर होगा उसके लिए हम डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 करेंगे। तो आप दोनों ही साथ फाइंड कर लें कॉलम। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास वेरिएंसेस आ जाएंगे इससे। ये वेरिएंसेस हैं जो कि नेक्स्ट उस पे आपको नज़र आ रहे हैं, वो है 0 1 4 9 16, 1 0 1 4 9 4 1 0 1 4 9 4 1 0 1 16 9 4 1 0। अब फिर इसकी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है, वेरिएंस फाइंड करने के बाद हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। एस स्क्वायर हमने लेने हैं, वेरिएंस क्या है हमारे पास, 0 है, फिर 1 है, फिर 4 है, 9 है, 16 है। फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है कि 0 इसमें कितनी दफ़ा है, 1 कितने टाइम आ रहा है, 4 कितने टाइम्स है, 9 कितने टाइम है, 16 कितने टाइम। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई और इसका सम जो है टोटल हमारे पास 25 ही आ रहा है, देखें, और सैंपल भी हमारे 25 थे। फिर हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी और एस स्क्वायर के कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एस स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा, क्योंकि मी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर या म्यू एस स्क्वायर से हम इसको डिनोट करते हैं, वो इक्वल होता है समेशन एफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ के। ठीक है, अब समेशन एफ एस स्क्वायर जो है वो हमारे पास 100 आ रहा है, 100 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है 25, तो ये हमारे पास 4 आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमने क्या करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इसको जो है ये अब देखें इक्वल नहीं आ रहा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर जो है वो पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल नहीं आ रहा, वो हमारे पास 8 आ रहा है और ये हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका किया है। ठीक है, अब आगे इसको जो है वो करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, या तो फिर हम ये करते हैं कि n माइनस 1 ओवर n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा स्क्वायर को, तो तब ये इक्वल हो जाएंगे। या फिर इसका ये है कि दूसरा जो उसने पार्ट हम करेंगे उसके लिए हम दोबारा से एस स्क्वायर फाइंड करेंगे, एस स्क्वायर, और वो एस स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 पे डिवाइड करके हमारे पास एस स्क्वायर आ जाएंगे, ये वाले एस स्क्वायर। फिर इसकी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर ये हमारे पास 8 आ रहा है, देखें। ठीक है, तो ये फिर इक्वल आ गया। तो इस तरह से अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है
तो आपने इस तरह से करना है। या फिर अगर आपको ये जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस वन ओवर n इंटू सिग्मा स्क्वायर, ये फार्मूला दिया हुआ है, अगर ये आपको क्वेश्चन में कह देते हैं कि आप इससे इसको अनबाइस्ड बनाएं तो फिर आपने अनबाइस्ड इससे बनाना होगा, ठीक है। या फिर बेस्ट तरीका ये है कि आप एस स्क्वायर इस तरह से फाइंड करें और उसकी दोबारा से आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं और उसको अनबाइस्ड वेरिएंस जो है वो फाइंड कर लें। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना ली एस स्क्वायर जो हमने n माइनस वन पे डिवाइड करके हमने एस स्क्वायर फाइंड किए थे, ठीक है। उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, एफ एस स्क्वायर फाइंड किया, उसका सम हमारे पास 200 आ रहा है, उसको 25 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर 8 आ रहा है और सिग्मा स्क्वायर भी हमारे पास 8 आया था, ठीक है। तो दोनों अब इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एस स्क्वायर स्मॉल एस स्क्वायर इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। जबकि पहले जब हमने n पे उसको डिवाइड किया था तो वो बाइस्ड एस्टिमेटर था पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का, और फिर जब n माइनस वन पे हमने डिवाइड किया तो वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर हो गया, ठीक है। Question number 16.1 from your exercise on page 213. By taking all possible samples of size 2 with replacement from the population 2, 3, 4 and 5, show that expected value of x bar is equal to mu. Second one is expected value of s square is not equal to sigma square. Third is expected value of s square is equal to sigma square. ये अभी जो हमने एग्जाम्पल की है ये उसी तरह का बिल्कुल है, तो मैं आपको ये अभी बताऊंगी तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। कैपिटल N हमारे पास 4 है और स्मॉल n साइज 2 के सैंपल हमने विद रिप्लेसमेंट बनाने। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करने हैं, ठीक है। इन सब जो कि पॉपुलेशन मीन हमारे पास किसके इक्वल होता है, समेशन x डिवाइडेड बाय कैपिटल N के पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हमने सम किया और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड किया तो हमारे पास पॉपुलेशन मीन म्यू आ गया 3.5। फिर हमने वेरिएंस फाइंड किया और वेरिएंस का फार्मूला समेशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N है, तो वो हमारे पास आ गया 1.25। नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ सैंपल्स हमने फाइंड करने हैं। विद रिप्लेसमेंट केस है तो इसमें फार्मूला इसका क्या होगा, कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n। कैपिटल N 4 है, स्मॉल n हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास 16 सैंपल विद रिप्लेसमेंट बनेंगे, ठीक है। तो विद रिप्लेसमेंट हमने 16 सैंपल्स इसके बना लिए, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 2, 5, 3, 5, 4 एंड 5, 5। और फिर इनके मीन फाइंड किए इन सैंपल्स के, और फिर हमने एस स्क्वायर फाइंड किया जो कि हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर के लिए बाइस्ड वेरिएंस के लिए, ठीक है। एन पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बाइस्ड वेरिएंस आएगा, ठीक है। हमने इसको एन पे डिवाइड किया और कैसे आया ये हमारे पास, एक्स बार हमारे पास 2 है और सैंपल मीन हमारे पास देखें, सैंपल जो हमारे पास हैं वो 2 और 2 है, तो 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये सारा ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अगला देखें, 2 माइनस 2.5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.25 आ जाएगा। अब अगला जो सैंपल है ये देखें, 2 माइनस उसका मीन जो है वो 3 है, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से 2 माइनस 3.5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आ जाती है 2.25, एस स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सैंपल है 3 और इसका मीन जो है वो 2.5 है, तो इसको हम लिखेंगे 3 माइनस 2.5 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आ जाएगी एस स्क्वायर की 0.25, ठीक है। नेक्स्ट है 3 और मीन इसका 3 है, तो 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास सैंपल है 3 4 और इसका मीन है 3.5, तो ये होगा 3 माइनस 3.5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास 0.25 वैल्यू आ गई। इस तरह से हम पूरा कॉलम फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट कॉलम मैंने साथ ही इसके फाइंड कर लिया है, क्योंकि बार बार टेबल को लिखने से जो है वो टाइम की बचत हो जाए, मैंने साथ ही ये कॉलम भी फाइंड कर लिया है। अब स्मॉल एस स्क्वायर आपने अनबाइस्ड एस्टिमेटर फाइंड करना है पॉपुलेशन वेरिएंस का, तो आपने क्या करना है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 करना है। ठीक है, एन आपके पास 2 है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, 2 2 फर्स्ट सैंपल है और मीन उसका 2 है, तो 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो ये 0 के इक्वल आ गया। फिर 2 और 3 नेक्स्ट सैंपल है और एक्स बार 2.5 है, 2 माइनस 2.5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2.5 होल स्क्वायर सॉरी, तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सैंपल है 2 4 और इसका मीन जो है वो 3 है, तो 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, ये इक्वल टू आ जाएगा 2 के। इसी तरह से हमने ये पूरा कॉलम इसका भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। पहले तो हमने मीन का फाइंड करना है, क्योंकि उसने लिखा हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये आपने फाइंड करना है। अब एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे। एक्स बार की तमाम वैल्यूज हमने लिखी, ठीक है। फर्स्ट उसमें 2 है, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 2 है, फिर उसके बाद 2.5, फिर 3, 3.5, 4, 4.5 और फिर 5 है। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमने कि 2 उसमें कितनी दफ़ा लाई कर रहा है, 2.5 कितनी दफ़ा है, 3 कितनी दफ़ा है, इसी तरह से 3.5 कितनी दफ़ा आ रहा है, ये सारा हमने देखा। तो ये हमारे पास देखें फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया और उसका सम हमारे पास 16 ही आ रहा है, और देखें हमने सैंपल भी 16 ही बनाए हैं। तो नेक्स्ट जो कॉलम इसमें होता है, आपको अगर याद हो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन आपने पीछे पढ़ा है पिछले चैप्टर में, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स बार। ठीक है, हर फ्रीक्वेंसी अपने टोटल पे डिवाइड होगी, 1 डिवाइडेड बाय 16, 2 डिवाइडेड बाय 16, 3 डिवाइडेड बाय 16 एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर नेक्स्ट कॉलम हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार या म्यू एक्स बार का जो फार्मूला होता है वो क्या है, समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। ये कॉलम हम फाइंड करेंगे जो कि एक्स बार के कॉलम को एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1/16, 2/16 आ जाएगा, 2.5 इंटू 2/16 ये हमारे पास 5/16 आ जाएगा, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16 ये 9/16 आ जाएगा एंड सो ऑन। और इसका सम आ रहा है 56 डिवाइडेड बाई 16। तो देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार या म्यू एक्स बार हमारे पास 3.5 आ रहा है, और आप देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार या म्यू एक्स बार हमेशा इक्वल टू पॉपुलेशन मीन म्यू होता है। ये आपने पढ़ा था ना, चाहे के विद रिप्लेसमेंट केस हो या कि विदाउट रिप्लेसमेंट केस हो, अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब सेकंड जो पार्ट है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अब जो n पे हमने डिवाइड किया था और वेरिएंस हमारे पास आए हैं, ये जो थर्ड कॉलम है एस स्क्वायर का जो कॉलम है डिवाइडेड बाय n से जो हमने लिया है, इसमें से आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस बनानी है। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस हमने सेकेंड पार्ट जो है उसमें के एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज द बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। तो बाइस्ड एस्टिमेटर कब होता है, जब एस स्क्वायर के फार्मूले में हम n पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, और n पे डिवाइड करने से जो हमारे पास वेरिएंसेस आए थे उनकी हमने अब डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें देखें सबसे छोटी वैल्यू 0 है, फिर 0.25 है, फिर 1 है, फिर 2.25 है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि 0 उसमें कितनी दफ़ा लाई कर रहा है, और उसमें 6 कितनी दफ़ा लाई कर रहा है, उसमें 1 कितनी दफ़ा है, उसमें 2.25 कितनी दफ़ा आ रहा है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का सम देखें हमारे पास 16 आ रहा है और 16 ही हमने सैंपल बनाए थे। नेक्स्ट जो हमने कॉलम फाइंड करना है वो है एफ एस स्क्वायर का। एफ के कॉलम को एस स्क्वायर के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये एफ एस स्क्वायर का कॉलम आ गया।
हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर या विच इज इक्वल टू म्यू एस स्क्वायर हम ये फाइंड करेंगे, और इसका फार्मूला है समेशन एफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, समेशन एफ एस स्क्वायर का सम जो है वो हमारे पास 10 आ रहा है, और समेशन एफ जो है वो हमारे पास 16 आ रहा है। तो ये हमारे पास म्यू एस स्क्वायर जो है 0.625 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है 1.25 के, जो क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस हमारे पास 1.25 आ रहा था। ठीक है, तो ये बाइस्ड एस्टिमेटर हो गया। अब थर्ड हमने जो फाइंड करना है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर के लिए हमने n-1 पे डिवाइड किया था, वहाँ से हमने एस स्क्वायर की वैल्यूज लेनी है। 0 है, 0.5 है, 2 है और फिर 4.5, और उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई, फ्रीक्वेंसी उसकी ली, जो कि उसका सम जो है वो 16 ही आ रहा है, और 16 सैंपल हमने बनाए थे। और नेक्स्ट कॉलम उसका एफ एस स्क्वायर स्मॉल एस स्क्वायर से इसको करेंगे, और 22 वाले को कैपिटल एस स्क्वायर से करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस स्क्वायर होता है, जिसका फार्मूला समेशन एफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ है। अब एफ एस स्क्वायर का जो सम है वो 20 है, और एफ का सम जो है वो 16 है। तो ये देखें इक्वल टू 1.25 आ रहा है। तो ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। सैंपल वेरिएंस जो है इट इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। दोनों देखें इक्वल आ रहे हैं, 1.25 है वो भी, और वो भी 1.25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.3. The question is a sample of 5 measurements of the diameter of a sphere were recorded by a scientist as 6.33, 6.37, 6.36, 6.32 and 6.37 inches. Determine the unbiased estimate of the population mean and the population variance. ठीक है, आपने ये फाइंड करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास x की वैल्यूज गिवन है, हमने वेरिएंस पहले तो फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है। मीन हमने फाइंड करना है समेशन x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, और फिर उसके बाद समेशन x का जो सम है वो हमारे पास 31.75 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है, तो x बार हमारे पास आ गया 6.35। नेक्स्ट हमने वेरिएंस फाइंड करना है। अब वेरिएंस का फार्मूला आपकी मर्जी है, आप समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 ये लगाएं, या इसका फर्दर ये भी फार्मूला है 1 ओवर n माइनस 1 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब n आपके पास 5 है, और समेशन एक्स स्क्वायर का जो सम आ रहा है वो है 201.7420। ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर का जो आ रहा है आपके पास सम, माइनस समेशन एक्स आपके पास है 31.75 इसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय n जो है वो आपके पास 5 है। तो ये वेरिएंस आ जाएगा 0.00062। तो हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड अनबाइस्ड एस्टिमेटर जो है आर 6.35 एंड 0.0062 फॉर ट्रू पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन वेरिएंस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे वेरिएंस और जो है मीन, ये सिर्फ हमने फाइंड करने हैं इसमें। Students, this is your today's home task. Question number 16.2 part A and B from your exercise. Solve this question and give short answers. What is meant by estimation? Differentiate between estimator and estimate. What is meant by point estimation and interval estimation? These are very important questions, और ये short questions में अक्सर आते हैं। आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है, तो आपने अपने सब्जेक्ट ग्रुप में इनके आंसर जो हैं वो आपने सेंड करने हैं।